Friends, warm welcome to you all. This time we will celebrate Women's Day and enjoy the poem Nari Tum Keval Shraddha Ho. International Women's Day is celebrated on the 8th of March every year. It's a day that people around the world dedicated to the women in their lives. It's a day where women are recognized and celebrated in their fields. Empowering women is a great responsibility. It is necessary for gender equality. A society is better when women are not taken for granted and are given equal respect. In the olden days, women were confined to the home and were not allowed to step out of the house for work. But today's society has seen a lot of changes. This generation values women and trusts with amazing responsibility. Women are given equal potential at work and are allowed to stand among and sometimes ahead of men in many fields. Today's woman is self-reliant and independent in every aspect. We have to accept that both men and women contribute equally to the betterment of the home and society. It is the woman who brings life. Every woman is special, no matter where she works, at home or in office. She is making a difference to the world around her and most importantly, plays a major role in upbringing children and building a home. It is our responsibility to appreciate and honor the women who are making success in their life and bringing success into the life of other women and those around her. The contribution of women in every sphere of life is massive. They contribute towards the lives of their family members as well as the country. Nari Tum Keval Shraddha Ho. This has been taken from a Hindi epic poem Kamayani by Sri Jaisankar Prasad. There is a respectable place for ladies in India. Since ancient days, women have been respected with trust and devotion. The woman is in the form of a mother, sister, wife, and in many other forms. A man's life is incomplete without a woman. There is a good wherever a woman is respected. Since the time of Veda and Upanishad, a woman has learned different shastras, mathematics and science. Our Indian rivers have been given women names like Ganga, Yamuna, Kaveri and Narmada. Thus, a woman has been given maximum importance. But liberty has been taken away from her. A woman is under the shelter of her father in her childhood days and under the control of her husband and her children lastly. Now the situation has been changed and a woman is becoming equal to man in each and every field like science, education, music, employment and politics. Now let's enjoy the poem. तो आइए नारी शक्ति को समर्पित श्री जयशंकर प्रसाद की रचना जो उनके कामायनी के लज्जा परिच्छेद से ली गई हैं, जो बतलाती हैं कि पुरुष और नारी एक दूसरे के पूरक हैं। नारी तुम एक श्रद्धा हो। कोमल किसलय के अंचल में नन्ही कलिका ज्यों छिपती सी, गोधूली के धूमिल पट में दीपक के स्वर में दीप्ति सी। मंजुल सपनों की विस्मृति में मन का उन्माद निखरता ज्यों, सुरभित लहरों की छाया में बुल्ले का विभव बिखरता ज्यों। वैसी ही माया में लिपटी अधरों पर उंगली धरे हुए, माधव के सरस कुतूहल का आंखों में पानी भरे हुए। नीरव निशीथ में लतिका सी तुम कौन आ रही हो बढ़ती, कोमल बाहें फैलाए सी आलिंगन का जादू पढ़ती। किन इंद्रजाल के फूलों से लेकर सुहाग कण राग भरे, सिर नीचा कर हो गूंथ माला जिससे मधुधार ढरे। पुलकित कदम्ब की माला सी पहना देती हो अंतर में, झुक जाती है मन की डाली अपनी फल भरता के डर में। वरदान सदृश हो डाल रही नीली किरणों से बुना हुआ, यह अंचल कितना हल्का सा, कितना सौरभ से सना हुआ।
सब अंग मोम से बनते हैं, कोमलता में बल खाती हूँ। मैं सिमट रही सी अपने में, परिहास गीत सुन पाती हूँ। स्मित बन जाती है तरल हंसी, नयनों में भरकर बांकपना। प्रत्यक्ष देखती हूँ सब जो, वह बनता जाता है सपना। मेरे सपनों में कलरव का संसार आंख जब खोल रहा, अनुराग समीरों पर तिरता था, इतराता सा डोल रहा। अभिलाषा अपने यौवन में उठती उस सुख के स्वागत को, जीवन भर के बल वैभव से सत्कृत करती दुरागत को। किरणों का रज्जु समेट लिया, जिसका अवलंबन ले चढ़ती, रस के निर्झर में धंसकर मैं आनंद शिखर के प्रति बढ़ती। छूने में हिचक, देखने में पलकें आँखों पर झुकती हैं, कलरव परिहास भरी गूंजे, अधरों तक सहसा रुकती हैं। संकेत कर रही रोमाली, चुपचाप बरसती खड़ी रही, भाषा बन भवों की काली रेखा सी भ्रम में पड़ी रही। तुम कौन? हृदय की परवस्ता सारी स्वतंत्रता छीन रही, स्वच्छंद सुमन जो खिले रहे, जीवन वन से हो बीन रही। संध्या की लाली में हंसती, उसका ही आश्रय लेती सी, छाया प्रतिमा गुनगुना उठी, श्रद्धा का उत्तर देती सी। इतना न चमत्कृत हो बाले, अपने मन का उपकार करो। मैं एक पकड़ हूं जो कहती, ठहरो कुछ सोच विचार करो। अंबर चुंबी हिमश्रृंगों से कलरव कोलाहल साथ लिए, विद्युत की प्राणमयी धारा बहती जिसमें उन्माद लिए। मंगल कुमकुम की श्री जिसमें निखरी हो ऊषा की लाली, भोला सुहाग इठलाता हो, ऐसी हो जिसमें हरियाली। हो नयनों का कल्याण बना, आनंद सुमन सा विकसा हो, वासंती के वन वैभव में जिसका पंचम स्वर पिकसा हो। जो गूंज उठे फिर नस नस में, मूर्छना समान मचलता सा, आंखों के सांचे में आकर रमणीय रूप बन ढलता सा। नैनों की नीलम की घाटी जिस रस घन से छा जाती हो, वह कौन कि जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। हिल्लोल भरा हो ऋतुपति का, गोधूली की सी ममता हो, जागरण प्रात सा हंसता हो, जिसमें मध्याह्न निखरता हो चकित निकल आई सहसा जो अपने प्राची के घर से, उस नवल चंद्रिका से बिछले जो मानस की लहरों पर से। फूलों की कोमल पंखुड़ियाँ बिखरें जिसके अभिनंदन में, मकरंद मिलाती हों अपना स्वागत के कुमकुम चंदन में। कोमल किसलय मरमर रव से जिसका जय घोष सुनाते हों, जिसमें दुख सुख मिलकर मन के उत्सव आनंद मनाते हों। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। मैं उसी चपल की धात्री हूँ, गौरव महिमा हूँ सिखलाती, ठोकर जो लगने वाली है उसको धीरे से समझाती। मैं देव सृष्टि की रतिरानी, निज पंचवाण से वंचित हो, बन आवर्जना मूर्ति दीना, अपनी अतृप्ति सी संचित हो। अवशिष्ट रह गई अनुभव में अपनी अतीत असफलता सी, लीला विलास की खेद भरी अवसादमयी श्रम दलिता सी। मैं रति की प्रतिकृति लज्जा हूँ, मैं शालीनता सिखाती हूँ, मत वाली सुंदरता पग में नूपुर से लिपट मनाती हूँ। लाली बन सरल कपोलों में आँखों में अंजन सी लगती, कुंचित अलकों सी घुंघराली मन की मरोर बनकर जगती। चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। हाँ ठीक, परंतु बताओगी मेरे जीवन का पथ क्या है? इस निविड़ निशा में संस्कृति की आलोकमयी रेखा क्या है? यह आज समझ तो पाई हूँ,
मैं दुर्बलता में नारी हूँ, अवयव की सुंदर कोमलता लेकर मैं सबसे हारी हूँ। पर मन भी क्यों इतना ढीला, अपना ही होता जाता है, घनश्याम खंड की आंखों से क्यों सहसा जल भर आता है। सर्वस्व समर्पण करने की विश्वास महातरु छाया में, चुपचाप पड़ी रहने की क्यों ममता जगती है माया में। छाया पथ में तारक द्युति सी झिलमिल करने की मधुलीला, अभिनय करती क्यों इस मन में कोमल निरीहता श्रमशीला। निस्संबल होकर तिरती हूँ इस मानस की गहराई में, चाहती नहीं जागरण कभी सपने की इस सुधराई में। नारी जीवन का चित्र यही क्या विकल रंग भर देती हो, अस्फुट रेखा की सीमा में आकार कला को देती हो। रुकती हूँ और ठहरती हूँ पर सोच विचार न कर सकती, पगली सी कोई अंतर में बैठी जैसे अनुदिन बकती। मैं जब भी तोलने का करती उपचार स्वयं तुल जाती हूँ, भूजलता फंसाकर नरतरु से झूले सी झोंकी खाती हूँ। इस अर्पण में कुछ और नहीं केवल उत्सर्ग छलकता है, मैं दे दूं और न फिर कुछ लूं इतना ही सरल झलकता है। क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पत्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। देवों की विजय दानवों की हारों का होता युद्ध रहा, संघर्ष सदा और अंतर में जीवित रह नित्य विरुद्ध रहा। आंसू से भींगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मित रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा, यह संधि पत्र लिखना होगा।